Hello everyone, this is A. Mani Sharma and you are watching Percentage and its Applications Part 2. This is of DAV syllabus Standard 6. We shall be doing worksheet 2, question number 1 to question number 5 in this video. Now let us see what is given in question number 1. Find the amount 6% more than 120. Find the amount 6% more than rupees 120. Okay. So, and the second one is you have to find the amount 15% less than rupees 400. Now let us see how we can do this. So first solution for A. The amount 6% more than 120 means you have to find out 6% more than 120. 6% means 6 rupees more for every 100 rupees. So first of all try to find out the increased amount. So increased amount in question number 1 will be 6% of rupees 120. Okay, so 6% of rupees 120 means 6 by 100 into 120. Now cancel 0, 0. See 2 5s are 10 and 2 6s are 12. So you are left with rupees 36 by 5. See here how will you cancel it? 36 by 5 means see 36 divided by 5. 5 6s are 30, 5 7s are 35. So 7s are 35. 6 minus 5 is 1. Put a point here 0. 5 2s are 10. So it is how much? Rupees 7.2. This much is the increased amount. This much is the increased amount. So how will you find the answer here? Here what is asked? The amount 6% more than rupees 120. That means the required amount will be equal to how much? Rupees 120 plus rupees 7.2. See here 7.2. That means here you have to put 0.0. Now what you will get? 2 and here 7, here 2 and then 1. Okay. So rupees 127.2. Your answer is rupees 127.2. You can write 0.20. So this is the amount which is 6% more than rupees 120. Now children, let us see the next question. Question B. Solution for B. The amount 15% less than 400. That means you have to find the amount which is 15% less than rupees 400. So first of all, let us find the decreased amount. So decreased amount will be equal to 15% of rupees 400. So 15% means 15 per 100. That means 15 by 100. Of means into rupees 400. Now let us cancel. Let us cancel the two zeros. So this 0 gets cancelled with these two zeros. So you will be left with rupees 15 fours are 60. Okay. So now required amount will be how much? Required amount will be equal to how much? 15% less than rupees 400. That means 400 minus rupees 60. Isn't it? 400 minus rupees 60. So let us write this rupees 400 minus rupees 60. So how much you will get? 400 minus rupees 60, it will be equal to rupees 340. This is your final answer for the amount 15% less than rupees 400. Now let us see the next question. Yes, question number 2. What does it say? The monthly salary of Mohan
the monthly salary of Mohan is rupees 950. So this is the salary of Mohan. If the salary increases by 6%, see here, 6% increase in salary. That means for every 100 rupees, his employer has increased rupees 6. So what will be his new salary? This is the question. इसका मतलब हो गया कि 950 रुपीज वो कमाता था और उसका हर 100 रुपया पर 6 रुपीज का इंक्रीज हो गया, तो अब उसका नया सैलरी क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू राइट? देखो सॉल्यूशन में पहले हम क्या लिखेंगे? पहले तो ये लिखो कि मोहन की असली सैलरी क्या है. सो द सैलरी ऑफ मोहन इज इक्वल टू रुपीज 950. ये उसकी सैलरी थी. अब इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज्ड सैलरी कितनी हुई? 6% ऑफ कितना का 6%? 6% ऑफ रुपीज 950. जो उसका पहला सैलरी था उसका 6% इंक्रीज हुआ. तो अब ये पहले इसको फाइंड आउट करो. 6% ऑफ रुपीज 950 मतलब 6/100 ऑफ मीन्स इनटू 950. चलो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैंसल 950 में 0 और इसका 0 हो गया. नाउ 5 2s and here 5 1s 5, 5 9s 45. अगेन 2 1s 2, 2 3s 6. मतलब आगे तुम्हारा 19 3s 57. तो रुपीज 57 का इंक्रीज हुआ. सैलरी इंक्रीज कितना हो गया? रुपीज 57. सो न्यू सैलरी कितना हो जाएगा? 950 रुपीज और ऊपर से ये जो सैलरी इंक्रीज हुआ ये दोनों मिला करके. सो द न्यू सैलरी of Mohan will be equal to rupees 950 plus rupees 57. कितना हो जाएगा? सी 950 plus 50 करोगे तो 1000 और फिर 7, तो रुपीज 1007. उसका नया सैलरी कितना हो गया? 1007. Now let us see the next question. Question number 3 देखिए. A dealer buys an old car for rupees 80,000. इसका मतलब है कि एक डीलर ने एक पुरानी कार खरीदी और उसका कॉस्ट है 80,000. He repairs it and sells it at an increase of 10%. अब अपने हिसाब से उसको रिपेयर कर दिया, डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, उसके बाद उसको 10% इंक्रीज करके मतलब हर 100 रुपया में 10 रुपया का प्रॉफिट रख के उसको सेल कर दिया, बेच दिया. What is the selling price of the car? अब हमको क्या निकालना है? वो उसने कार को कितना में बेचा, ये निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सॉल्यूशन में हम पहले क्या लिखेंगे? पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द ओल्ड कार. कॉस्ट ऑफ द ओल्ड कार पुराने कार का कॉस्ट क्या था? रुपीज 80,000. उसके बाद सेल्स इट एट एन इंक्रीज ऑफ 10%. तो इंक्रीज्ड कॉस्ट. कैसे इंक्रीज किया? कॉस्ट उसको कितना इंक्रीज किया? 10%. 10% किसका? 10% ऑफ रुपीज 80,000. 80,000 का 10% इंक्रीज किया. तो पहले इसको हम निकालते हैं. 10% ऑफ 80,000 क्या होगा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो फॉर हाउ मच इज 10% ऑफ 80,000. 10% मीन्स 10/100 इंटू रुपीज 80,000. अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको क्या करेंगे? कैंसल करेंगे. 1020 सो 20 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 20 फ्रॉम डिनोमिनेटर. कैंसल कर दिए. कितना बच गया? देखिए तो 10 इंटू 800 दैट मीन्स रुपीज 8,000 लेफ्ट. हमारे पास कितना बच गया? देखिए 1 2 और ये 3 0 8,000 रुपीज 8,000. तो कॉस्ट कितना इंक्रीज हो गया? इसमें 8,000 रुपीज का कॉस्ट इंक्रीज हो गया. तो कार का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000 वो और जो इंक्रीज्ड कॉस्ट है वो दोनों को लेकर के सेलिंग प्राइस होगा. सो सेलिंग प्राइस ऑफ द कार will be equal to rupees 80,000 plus rupees 8,000. कितना हो जाएगा? रुपीज 88,000.
88,000. कितना हो गया? ₹88,000. Next question is, the monthly consumption of milk in a family is 120 liters. देखो, एक परिवार में जो हर महीना दूध आता है तो उसका कंजम्पशन मतलब यूज, खर्च, कंज्यूम करना, खाना, कंज्यूम करना, जिसका खर्च होता है, तो 120 लीटर्स का दूध का खर्चा है एक परिवार में. If due to festivals the consumption of milk is increased by 20%. अब ध्यान दो, दीपावली आ रही है, आप लोग के घर में भी रिलेटिव्स लोग आएंगे, तो फ्रेंड्स लोग भी आते जाते रहते हैं और हम लोग नई नई चीजें बनाते हैं फेस्टिवल्स पर, मिठाई वगैरह, तो दूध का खर्च बढ़ जाता है. तो इस परिवार में दूध का खर्च 20% बढ़ गया. फाइंड द प्रेजेंट कंजम्पशन ऑफ मिल्क. सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? monthly consumption of milk कितना है? 120 लीटर्स. सो एक परिवार में जो हर महीना आता था पहले सिस्टमैटिक ढंग से, वो क्या था? 120. अब फेस्टिवल की वजह से, मान के चलो दिवाली की वजह से अगर दूध का यूज बढ़ गया, जरूरत बढ़ गई, तो क्या लिखेंगे? 20% इंक्रीज. कितना इंक्रीज हुआ? 20%. सो इंक्रीज्ड कंजम्पशन कितना है? 20%. 20% किसका? 20% ऑफ 120 लीटर्स. 120 लीटर का हम लोग जो है 120 लीटर्स. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए पहले. 20% मीन्स 20/100 इंटू 120. ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? 0 0 एंड 0 0. ठीक है, तो कितना हो गया? 12 2 24. यहाँ पर क्या छूट गया है? लीटर्स लिखना होगा. सो 12 2 24 लीटर्स. तो कितना बढ़ा? उस घर में 24 लीटर्स का खर्चा बढ़ा. सो फाइंड द प्रेजेंट कंजम्पशन. अभी कितना खर्च हो रहा है? सो द प्रेजेंट कंजम्पशन ऑफ मिल्क विल बी इक्वल टू कितना? पहले 120 था, 120 प्लस 24, 120 प्लस 24 लीटर्स. कितना हो जाएगा? 144 लीटर्स. अब उस घर में कितना दूध आ रहा है इस महीने के लिए? 144 लीटर्स. नाउ लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का. चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है. द कॉस्ट ऑफ अ साड़ी वॉज ₹500. एक तो साड़ी था जिसका कॉस्ट ₹500 था. ओके, नाउ इफ द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%. ध्यान दो, 20% डिस्काउंट समझते होंगे ना आप लोग. डिस्काउंट मतलब कोई भी चीज अगर आप दुकान में खरीदने जाते हो तो पूछते हो ना कि डिस्काउंट कितना दीजिएगा. तो इस शॉप में जो 500 रुपीज की साड़ी थी उस पर डिस्काउंट 20%, मतलब हर 100 रुपीज में वो 20 रुपीज आपको कम करके दे रहा था. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द साड़ी आफ्टर डिस्काउंट? सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द साड़ी. साड़ी का कॉस्ट क्या है? ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द साड़ी इज इक्वल टू हाउ मच? ₹500. ठीक है, डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट कितना अलाउ किया था? 20%. तो 20% किसका? 20% ऑफ ₹500. इसको सॉल्व करिए. 20/100 इंटू ₹500. सॉल्व करने से हम लोग को क्या मिलेगा? देखिए तो 10 10 10 10. नाउ सी हाउ मच इज लेफ्ट. 20 इंटू 5 मतलब 25 का कितना होता है? 100. तो ₹100 का डिस्काउंट मिल गया. यू हैव गॉट द डिस्काउंट ऑफ ₹100. इसका मतलब 500 रुपए की साड़ी को वो 100 रुपया और कम कर देगा. उस पे कितने में देगा? 400 पे. सो द कॉस्ट ऑफ द साड़ी
इज इक्वल टू ₹500 माइनस ₹100। ठीक है, डिस्काउंट मतलब कम करना, तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। ₹500 माइनस 100 मतलब ₹400। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द साड़ी? साड़ी का कॉस्ट क्या है आफ्टर डिस्काउंट? डिस्काउंट के बाद ₹400। ओके चिल्ड्रन।